عمل چھوٹا سا ہے، عمل چھوٹا سا ہے، آپ خود نہیں کر سکتے، کسی بڑے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ ہم نے یہ ہدیہ ان کو دیا، اللہ سچا، اس کا حبیب سچا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ گوشت کے اوپر پھر سے غذا لگتی ہے اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے، وہ جنات کی غذا۔ سائنس کوئی چیز کہہ دیتی ہے کہ اس چیز کے اندر فلاں انرجی، فلاں وٹامنس، فلاں نقصان دہ چیزیں ہیں، فلاں فائدہ مند چیزیں ہیں، اندیکھے کہتے ہیں نہیں یہ چیز میرے لیے موافق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا یہ میرے غذائی چارٹ میں یہ چیز کاٹی ہوئی ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان کے فائدے، ان کے نفع، ان کا نقصان، اچھا کرنے سے کیا ہوگا یہ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ خوشبو ہم لگا رہے ہیں، کہتے یہ نیک جنات اور فرشتوں کی غذا ہے، خوشبو تو ہم لگا رہے ہیں، ان کی غذا کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ورنہ زندگی اسی طرح تکلیفوں، مسائل اور مشکلات میں الجھی اور اٹکی رہے گی۔ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو آپ حفاظت کا عمل کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔ ایسی قوتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جاگتے رہیں گے، توجہ سے سنیں گے۔ ایسی قوتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ نہ کھائیں، جنات ہیں۔ لیکن اسلام کا نظام ایسا ہے جس میں سخاوت ہے، جس میں سخاوت ہے۔ اسلام کے نظام میں سخاوت میں کیا کیا؟ سخاوت میں یہ کیا کہ چونکہ اسلام کا نظام سخاوت کا ہے، اب اس نے کیا کیا؟ یہاں دروازہ بند کر دیا، کوئی نہیں کھا سکتا، کوئی انسان آئے اس کے ساتھ کھا لے، جنات نہیں کھا سکتے۔ اس نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھا۔ اب سخاوت کا نظام یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے حصہ کیا ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہڈیوں میں ان کا حصہ رکھو ایک، اور چھوٹے جو ذرے بچے ہوئے کھانے کے ٹکڑے ان میں ان کا حصہ رکھو۔ فرمایا ہڈیوں کو گندی جگہ نہ پھینکو، صاف جگہ پھینکو، صاف جگہ رکھو۔ اللہ پاک ان پہ پھر کوئی غذا لگاتے ہیں جو ہماری نظروں میں نظر نہیں آتی، اور وہ جنات کی غذا بنتی ہے۔ جنات کی غذا عطر ہے، خوشبو ہے، لگایا کریں۔ جنات کی غذا ہڈیاں ہیں، دیا کریں، ہڈیاں ہیں، دیا کریں، اور ضرور دیا کریں۔ جنات کی غذا ہڈیاں ضرور دیا کریں۔ اب ایک سوال ہے، آپ ہڈیاں کیسے دیں؟ جیسے تسبیح خانے میں یہاں آپ تشریف لائے، ایک دن دال، ایک دن سبزی اور ایک دن گوشت ہوتا ہے، آپ کو بدل بدل کے کھانے دیے جاتے ہیں کہ آپ کی طبیعت، آپ کے ذائقے، آپ کا ذوق باقی رہے۔ اب وہ ہڈی آپ کے بالفرض آئی ہے تو آپ اسے اس نیت سے دسترخوان پہ رکھ دیں، کیونکہ ہمارے ہاں احباب بہت ہڈیوں کو سنبھالتے ہیں، پھینکتے نہیں ہیں، سنبھالتے ہیں، اور پھر اس کو صاف پاک جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں جانور کھاتے ہیں۔ آپ اپنی ہڈی رکھ دیں، اس پلیٹ میں ایک ہڈی تھی، ساری نیت کر لیں کہ ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، نیت ہوتی ہے۔ کئی گھرانوں میں جادو جنات، کئی گھرانوں میں شیطانی چیزیں، یا کئی گھرانوں میں واقعات در واقعات ہوئے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ جنات کو ہڈیاں دو، جو کھانے کی ہڈی ہیں وہ جنات کو دو، اور یہ کہو ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، ہماری طرف سے آپ کو دعوت ہے، یہ کہو۔ اور وہ بہت ہی زیادہ اس کا رزلٹ ملا، اور بہت ہی زیادہ اس کا نتیجہ ملا کہ جنات جو ہیں وہ کہنے لگے کہ آپ کے گھر سے کھائیں اور پھر آپ کو ستائیں۔
अच्छा, सताना भी नेक जिन्नात का इंतकाम के तौर पे नहीं होता, इस्लाह के तौर पे होता है। ये एक और लंबा मौजू है। शरीर जिन्नात का सताना शरारत के तौर पे होता है। जो नेक जिन्नात हैं वो सताते नहीं हैं, असल में इस्लाह करते हैं कि तेरे घर में नमाज नहीं, तेरे घर में तस्बीह नहीं, तेरे घर में नापाकी चल रही है, तेरे घर में तिलावत अमाल नहीं है, तेरे घर में रिज़्क़ हराम आ रहा है, इसको संभाल, वरना जिंदगी इसी तरह तकलीफों, मसाइल और मुश्किलात में उलझी और अटकी रहेगी। नेक जिन्नात का समझ लें कि अगर नेक जिन्नात हैं और घर में कोई उखाड़ पिछाड़ है, बीमारियों तकलीफों की शक्ल में, आग लग जाती है, कपड़े कट जाते हैं, छींटे पड़ते हैं, खून है, गोश्त है, ये वाकयात हैं, तो समझ लें वो उनकी तरफ से इस्लाह है, तंबीह है। जैसे कोई बुजुर्ग डांट देता है या थप्पड़ मार देता है या उस्ताद, वो उसका ताल्लुक थप्पड़ मारने से, डांटने से इंतकाम ही नहीं होता, इस्लाह ही होता है। उसका मतलब इस्लाह होती है। गोश्त की हड्डियां ये छोटा सा अमल है। मेरे आका ने फरमाया इसको आम करें, और मैंने जिंदगी भर किसी भी जगह से गोश्त की हड्डियों के ये अमल मैंने नहीं सुने। मेरा इल्म महदूद है, मैं दावा तो नहीं करता। ये तरतीब और ये खैर तस्बीह खाने ने फैलाई है। कितने अमल ऐसे हैं जिनका जरिया तस्बीह खाना बना है, और तस्बीह खाने में मैं अपनी जात को शामिल नहीं कर रहा। इस हड्डियों के अमल को एहतमाम से किया करें। अब रिवायात में एक और चीज आई है, फरमाया आप आबादी में हों, हड्डियों को साफ करें, उस पर कोई गोश्त ना हो, और अगर कहीं जंगल वीराने में हो उसमें कुछ गोश्त छोड़ दे। अजीब बात है, किसी जंगल वीराने में हो उसमें थोड़ा सा गोश्त छोड़ दे और उसको साफ जगह पे रखें, खराब गंदी जगह पे ना रखें। बज़ाहिर आपके सामने कोई और मखलूक खाए, लेकिन ये जिन्नात की ग़िज़ा है, ये जिन्नात की ग़िज़ा है। दो अमल ऐसे हैं, और उनमें और अमल भी शामिल हैं हमारी जिंदगी में, लेकिन इस वक्त मैं दो अमल की बात कर रहा हूं जिसकी वजह से जिन्नात हमारी जिंदगी में बहुत दाखिल हो गए। एक अटैच बात की वजह से, अटैच बात अगर है भी सही तो फिर उसमें बैतुल खला की दुआ का एहतमाम होना चाहिए, और बहुत ज्यादा होना चाहिए। एक और दूसरा, जब से हमने गोश्त का कसरत से इस्तेमाल किया, पहले साल के बाद गोश्त होता था, 6 महीने के बाद बड़ी दूर से गोश्त घरों में पकते थे। क्या ख्याल है? आज तो हमारा गोश्त ही गोश्त है। मेरे साथ एक मुर्गी वाला, ब्रायलर मुर्गी का था, बहुत बड़ा ताजर, मुझसे कहने लगा कि हम गोश्त पे इतने ज्यादा टूट पड़े हैं, शुक्र है ब्रायलर मुर्गी आ गई, वरना बंदा बंदे को खा जाता। हाँ, तो गोश्त जो है वो अब पकना शुरू हुआ है, तो फिर उसके लिए हमने क्या किया, जब से हड्डियां ज़ाय की हैं, इसको कूड़े में, गंद में, गटर में, सीवरेज में डाली हैं, उस दिन से हमारे ऊपर मुसीबतें, बलाएं, आफतें टली हैं। मैं एक सबब बता रहा हूं, और सबब भी बहुत सारे हैं। उस दिन से ये आफतें, मुसीबतें, बलाएं टली हैं। अमल छोटा सा है, आप खुद नहीं कर सकते, किसी बड़े दस्तरखान पे बैठे हैं, इसकी नियत कर लें कि हमने ये हदिया उनको दिया, अल्लाह सच्चा, उसका हबीब सच्चा। मेरे आका ने फरमाया है कि गोश्त के ऊपर फिर से ग़िज़ा लगती है, और वो जिन्नात की ग़िज़ा होती है, वो जिन्नात की ग़िज़ा। साइंस कोई चीज कह देती है कि इस चीज के अंदर फला एनर्जी, फला विटामिन, फला नुकसानदेह चीजें हैं,
फला फायदेमंद चीजें हैं, अनदेखे कहते हैं नहीं ये चीज मेरे लिए मुआफिक नहीं है। क्यों? उसने कहा ये मेरे ग़िज़ाई चार्ट में ये चीज काटी हुई है। इसी तरह कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें नजर नहीं आती, उनके फायदे, उनके नफे, उनका नुकसान, अच्छा करने से क्या होगा ये भी महसूस नहीं होता। खुशबू हम लगा रहे हैं, कहते ये नेक जिन्नात और फरिश्तों की ग़िज़ा है, खुशबू तो हम लगा रहे हैं, उनकी ग़िज़ा का इससे क्या ताल्लुक है। हमारे एक काबिल एहतराम है, तो वो कहने लगे कि हमारे यहाँ जिन्नात पढ़ते हैं। तो एक जिन मुझे मिला, तालिब इल्म, तुम्हारी ग़िज़ा क्या है? नहीं जी चावल पकाते हैं ना, तो चावल पकाते हुए उबालते हैं, उबालते हुए जो एक खुशबू उठती है, हमारी वो ग़िज़ा है। खून ज़बह करते हुए, जानवर को ज़बह करते हुए, जानवर के खून से खास बू उठती है, अब महसूस करें, हमारी वो ग़िज़ा है। और हमारी हड्डियों पे जो ग़िज़ा लगती है अल्लाह की तरफ से, हमारी ये ग़िज़ा है। और भी ग़िज़ाएं बताएं। हमारे पास जो मुयस्सर ग़िज़ा है हमारे गोदाम में, वही खुशबू है और ये हड्डियां हैं, ये तो हम दें। जो हमसे नहीं हो सकता वो ना करें, ये तो दें। इससे क्या होगा? जिन्नात दोस्त बन जाएंगे। मुंह खावे त्याग शर्मावे, मुंह खावे दोस्त बन जाएंगे, नुकसान नहीं देंगे, नफा देंगे, खैर सोचेंगे। ये छोटे छोटे मसनून अमल हैं, इनका एक वजन है, और ये छोटे छोटे मसनून अमाल हैं, इनका एक वजन है। मैंने एक और अमल बताया, दिन में किसी भी वक्त भी आप एक तस्बीह पढ़ते हैं कुल वल्लाह की, दो पढ़ते हैं, आप एक दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ते हैं, या इस्तिग़फ़ार की तीसरे कलमे की, या तिलावत करते हैं, इसका कुछ हिस्सा जिन्नात को हदिया कर दिया करें। कहा करें जिन्नात ये आपको हदिया है, ये आपको हदिया। हदिया देने से मोहब्बत बढ़ती है। तहादू तहाबू, मेरे आका ने फरमाया हदिया दो मोहब्बत बढ़ती है। वो हदिया इंसान है, वो हदिया जिन है। वो जानवर को दे दो ना, आप कोई चीज खिला दो, उससे भी मोहब्बत बढ़ जाती है। हमारे एक ताल्लुक वाले हैं वहां, उनके बड़े बड़े मोटे मोटे शेर उनके पास हैं, उसके ऊपर बाजू डालते हैं, हाथ उसके उनके पिंजरे के अंदर चले जाते हैं। ओ बब्बर शेर है इतना मोटा, क्यों? हदिया देते हैं। हदिया देने से मोहब्बत बढ़ती है। हम जिन्नात को हदिया ही नहीं देते, हदिया नहीं देते। अच्छा, जब जिन्नात को हदिया दें, वो शरीर जिन्नात के सामने आके खड़े हो जाते हैं और आके ठहर जा, वारिस हैं इसके, और इसके चाहने वाले हैं, सारी उम्र इसने खिलाया, यारां दे यार होने, सारी उम्र इसने खिलाया, आज तुम इसको नुकसान देने लगे हो, हम नहीं देने देंगे। मेरे पास तो वाकयात ही वाकयात है इसके, कि मेरी वजह से दो जिन्नात के कबाइल आपस में लड़ पड़े। एक कहेंगे हम इसको तकलीफ देंगे। भाई क्यों देते हो तकलीफ? मजा आता है हमें, अजियत देते हो मजा आता है, मजा आता है। दिल नहीं लगता। बाज बंदे होते ना, लड़ाई वगैरह, भाई घबराहट हो रही है, लड़ाई करें, मारना शुरू कर दिया, यूं यूं, मजा आता है। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं नहीं, ये वो है जिसने मुझे सारी उम्र खिलाया, जिसने सारी उम्र मुझे हदिये दिए,
चुप करके हदिया दे दिया। आप कौन? आपका दोस्त। हदिया दे दिया, तस्बीह का, कुरान का, तिलावत का, हड्डियों का, रूहानी हदिया भी और जिस्मानी हदिया भी। अब ये हदिया दे दी। हमारे जो बड़े थे वो छोटी छोटी इन चीजों के जरिए से खुद भी और अपने साथ ताल्लुक रखने वालों को भी बड़े बड़े मसाइल, मुश्किलात, हादसों, परेशानियों, मुसीबतों से बचाते थे। इन अमलों के जरिए, इन छोटे छोटे टोटकों के जरिए, इन छोटे छोटे नुस्खों के जरिए, इस छोटे छोटे अमल के जरिए खुद भी बचते थे और उम्मत को भी बचाते थे। अमल तो छोटा है। आज तक किताबों में पढ़ते रहे कि खुशबू ग़िज़ा है, किताबों में पढ़ते रहे कि हड्डियां जिन्नात की ग़िज़ा है, पढ़ते रहे। और करके देखें, ये जो किताबें हैं ये मेरे आपके लिए हैं, हमारे करने के लिए हैं, हमारे करने के लिए। मैंने तो इस तरतीब को चलाया, साल से चला रहा हूं, साल से। और साल से मैंने जिसको भी बताया है, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से बहुत फायदा हुआ, नफा हुआ। अल्लाह की रहमत है। एक उम्मत का एक तबका है जो मेरी बात को सुनता भी है, लेता भी है, मानता भी है, कदरदानी भी करता है। और चूंकि बात मेरी नहीं होती, मैं डाकिया और कासिद हूं, वो कमली वाले की बात होती है, मैं पेश कर देता हूं और वो मानते करते हैं, अल्लाह नफा दे देता है मेरे आका की बरकत से, मेरे हुजूर की बरकत से, मदीने वाले की बरकत से। मैं तो सिर्फ बात को पेश करता हूं बहैसियत डाकिया के, उसको बात को आपकी खिदमत में लेके आता हूं। तो ये छोटे छोटे अमल है, छोटे छोटे अमल। मैंने एक बंदे को ना एक दफा किसी किताब में नहीं पढ़ा, मैंने ये अमल पढ़ा नहीं, अचानक अल्लाह ने दिल में डाला। जब बंदा किसी फन में फना होता है, फन में फना होता है, तो अल्लाह अपने इल्म में से इल्म अता फरमाता, इल्म में से। मैंने एक बंदे को कहा, उसके साथ कुछ जिन्नात की शरारतें, कोई मसाइल, बेचारा मुश्किलों में उलझा, धंसा, फंसा, बहुत उलझनों में था। एक घर में ना ऐसे हालात होना शुरू हुए, मेरे पास आए, अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह ने सुझाया। मैंने कहा 1.25 लाख सलाम करें, 1.25 लाख सलाम करो जिन्नात को, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, सारा दिन पढ़ो और जिन्नात को सलाम करो। तसव्वुर करो जी, आपको सलाम कर रहा है। उस सख्त से सख्त आदमी हो जिसकी 1.25 लाख दफा मिन्नत की जाए, सोचो तो सही। सख्त से सख्त आदमी जिसकी 1.25 लाख दफा मिन्नत की जाए। और अस्सलाम वालेकुम से क्या मुराद है? आप सलामत रहें, आप खैरियत से रहें, आप आफियत से रहें, आप सदा खेलें कूदें, रहमतें, बरकतें, इज्जतें, शान शौकतें, वकार, सरबुलंदियां, कभी तुक न हो, कभी तकलीफ न हो, हमेशा राहत हो, आबाद रहें, शाद रहें, बामुराद रहें, हंसते रहें, बसते रहें, खुश रहें, खुशियां रहें, खुशहालियां रहें, तमंगरियां रहें। सलाम में ये सब कुछ और इसके अलावा बेशुमार मौजूद है। मैंने कहा इस नियत से सलाम करना शुरू कर दिया, सलाम करना शुरू कर दिया, करते रहे कह रहे कुछ फायदा नहीं है। मैं कहा नाराज ज्यादा है, करो। 1.25 लाख दफा सलाम किया। सब घर वाले सारा दिन यही वजीफा करते थे, अस्सलाम वालेकुम, ये वजीफा है, खुद बरकत है, सलाम खुद बरकत है।
ایک दफा करने से क्या फायदा होता है, और जो सारा दिन सैकड़ों हजारों पढ़े उसको क्या नफा मिलेगा? सोचें तो से। करते 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 आलम ये हुआ, ख्वाब में आना शुरू हो गए, ख्वाब में आना शुरू। जागते या सोते वक्त कानों में सरगोशियां करते थे, कहते थे बस करो, ठीक है, अब हमारी दोस्ती हो गई। मुझसे कहने लगे ये हुआ, मैंने कहा अब शुक्रिया के तौर पे करो। जी आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आपका बहुत एहसान है, अब हम आपका शुक्रिया के तौर पे करेंगे। वो काम रुक गए वाकई, जब उन्होंने ना बस करो दोस्ती हो गई, वाकई वो धमाके जो थे वो सारे खत्म हो गए। मैंने कहा अब शुक्रिया के तौर पे करो। ये अल्लाह ने मेरे दिल में एक विजदानी कैफियत डाली। मैंने कहा भाई अच्छा, मेरे सामने वो हदीस आई, कौन सी? घर में दाखिल होते हुए जब एक दफा सलाम करते हैं तो वहां जिन्नात कहते हैं निकलो इस घर से, ना खाना ना सोना। वो हदीस मेरे सामने आई। उस हदीस का इस्तेंबात और उस हदीस के हवाले से अल्लाह ने यह मजमून मुझे सुझाया, अल्लाह ने यह मजमून मुझे सुझाया। मैंने कहा अब शुक्रिया के तौर पे करो। अब शुक्रिया के तौर पे कर रहे हैं। अब शुक्रिया के तौर पे करके अब कहने लगे अपने पीर साहब के पास ले चलो, लाहौर वाले के पास। टोकन कहां से मिले? करे टोकन हम करेंगे। पता नहीं कैसे उन्होंने टोकन लाके दे दिया, उनका टोकन था। जी हमने नहीं लिया, उन्होंने लिया है। उन किया होगा जो भी है, अल्लाह जाने, मेरे तो पता नहीं ना, मेरे किताबें हैं जिन। अब मेरे पास आए, आते ही सलाम किया और उसके बाद उसकी हालत बदली। वो आए, करे आपको सलाम पेश किया है, आपने बताया था इन्हें सलाम करें, तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर कहने लगी हमारे मुर्शिद कहते हैं शुक्रिया के तौर पे सलाम करें। हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। आपने इन्हें एक अच्छा अंदाज बताया, और ऐसा अनोखा अंदाज है कि वाकई हम बहुत गुस्से में थे। और वो नेक लोग थे, सारे सुलहा थे, अल्लाह के वली थे, सारा खानदान। फिर उन्होंने इनकी गलतियां बताई। इन्होंने घर में म्यूजिक चलाया, इन्होंने हमारे साथ ये ज्यादती की, इन्होंने जहां हम नमाज पढ़ते थे वहां गंदगी की, इन्होंने घर में कोई तस्बीह अमाल नहीं किए, इन्होंने रिस्क मशकूक, इन्होंने जिंदगी में हर टोन म्यूजिक, हर चीज, और हर वक्त घर में टीवी, फलां फलां ये करते थे। हमारी नमाज में तकलीफ होती थी। तो जब इन्होंने ये किया तो साथ उसकी भी इस्लाह हुई, हम भी खुश हुए। अब हम खुश हैं। इनसे कहें बस ये कुछ रहती हैं इनके घर में चीजें, वो ना करें, हम